औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाल्लाह आज का हमारा ये जेएसी का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि वस्सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। आज का जो सेशन है उसमें दरसे कुरान है मुज़म्मिल के ज़िम्मे। उसके बाद सिस्टर अमरीन अपना टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। फिर उसके बाद बुक रिव्यू है टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग इस्लाम बाय मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह। तो ये है हाशिर हुसैन के ज़िम्मे। उम्मीद है सब लोग है मौजूद इस सेशन में। मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा जनाब मुज़म्मिल से कि वो दरसे कुरान के ज़रिए आज के हमारे जेएससी क्लासेस का सेशन शुरू करें। मुज़म्मिल, यस सर, शुरू कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फथ व रअयतन नास यदखुलू फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बि बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु काना तव्वाबा। When Allah's help arrived and His victory, and you see the people enter Allah's religion in a large crowd, glorify and praise your Lord and ask for His forgiveness. Surely He is the one who continuously forgives. Bismillahirrahmanirrahim. This surah which I read is Surah An-Nasr, mean victory, in Hindi, Jeet. This is a very special surah because it was revealed because it was the last surah sent by Allah to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. This is the 110th chapter of the Quran and has 3 ayah. This surah was revealed in Medina. In this surah, Allah tells Muslim that Allah's help will come and Muslim will be the winners. Because Muslim along with Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was sent out of Makkah for 10 years by the non-Muslims. In the next ayat, Allah gives a good news that many non-Muslims of Makkah will become Muslims. In the last ayat, Allah tells us to thank Allah for all the blessings. So we must thank Allah. Always for everything He has given us. खत्म मुज़म्मिल? Yes, sir. ओके, जज़ाकल्लाह फॉर द ब्यूटीफुल रिसाइटेशन और आपके दर्स के लिए। नाउ आई वुड रिक्वेस्ट सिस्टर अमरीन टू कंटिन्यू द चैप्टर। Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Is everyone there today? You all can unmute your mics if there is no background noise. पीछे आवाज नहीं है तो आप लोग ये करो unmute, okay? तो कौन बता सकता है कि लास्ट वीक हम लोग ने क्या किए? लास्ट वीक हम लोग ने आर्चिव्स के बारे में सीखा था। किसके बारे में? आर्चिव्स, एथिस्ट के बारे में। ओके, वेरी गुड। एनीवन एल्स? We learned about the characteristics of atheist. Okay, very good. Anybody else? Okay, anyone remembers what was the homework? One small homework I had given you all. Tasmiya was there. Yeah, Sahar was there. Some Amira was there. Amra was there. Anyone remembers? We have to Those find who believe in polytheism.
of Muslims know that religions. Yes. So who has found out? Who can give me the answer quickly? Names of two religions which are polytheistic. Anyone? Taoism and Jainism. You? Okay, Taoism and Jainism. Who's the one who gave the answer? Sohail. Okay, very good. Okay, so inshallah today we'll continue with the chapter. Okay, Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalatu wassalamu ala rasulil kareem. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. ओके तो आज लास्ट टाइम हम लोग ने किए थे एथिज्म. ओके और उसके हम लोग ने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे. एथिज्म में क्या क्या बिलीव्स होते हैं और एथिज्म का इम्पैक्ट क्या होता कि वो एथिज्म फॉलो करने वालों की जिंदगी कैसी होती. ओके तो टुडे विल डू द नेक्स्ट पार्ट विच इज पॉलिथिज्म. पॉलिथिज्म के बारे में मैंने बताई थी ना. पॉली वर्ड मीन्स व्हाट? मेनी, है ना. तो पॉलिथिज्म इज बिलीफ इन मेनी gods. Okay, can you all see my screen? Yes. Okay. Yes. So yeah, the definition Yes, is sir. polytheism is the belief and worship of many deities. Okay, बहुत सारे खुदाओं में यकीन रखने को polytheism कहते हैं. Okay, और polytheism में ऐसा नहीं होता है कि वो लोग एक खुदा को नहीं मानते. एक खुदा के साथ साथ वो लोग बहुत सारे खुदाओं को मानते हैं. ओके जैसे कि लास्ट टाइम मैंने इन ब्रीफ आप लोगों को बताई थी ना. जैसे कि गाय को भी मानते, झाड़ को, सूरज को, सांप को, आग को, है ना. ऐसी कितनी सारी चीजें हैं उन लोग जिनको खुदा का दर्जा देते. ओके तो दिस इज पॉलिथिज्म. नाउ नेक्स्ट इज next I'll share the screen. I'll just show you some more pictures. Okay, of the ये कुछ चीजें हैं जिनमें वो लोग बिलीव करते. जो पॉलीथिस्ट रहते हैं वो लोग आइडल्स वर्शिप करते हैं ना. अलग अलग चीजों के वो लोग आइडल्स बनाते हैं. जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कैसे शैतानी फेसेस है वहां पे, है ना. फिर देयर इज अ लायन इन देयर. सो कुछ भी चीज हो उन लोग जो पॉलीथिस्ट रहते हैं वो लोग उसका एक आइडल बनाते या एक उसका स्टैचू बनाते एंड दे स्टार्ट वर्शिपिंग. ओके तो ये था about polytheism, about the idols, what they believe in. Okay, can you see another picture? Can you identify some of the gods there? Yes. Yes, can you name one? Do you know anyone there? Ganesh, Krishna, Very good. then और Sai Baba. Sai वेरी Baba. गुड. वहाँ पे साईं बाबा भी है. तो अभी गणेश तो लोग, गणेश को देखिए क्या आप लोग? सच्ची का गणेश देखे है? नहीं मूर्ति देखी okay. उसकी. मूर्ति देखे. बट सी साई बाबा वॉज अ ह्यूमन बीइंग. सो वो लोग ने ह्यूमन बीइंग्स को भी नहीं छोड़े. सो अलोंग विथ God, they believe in human beings also. Like they believe, abhi Ganesh is what actually, can you see the trunk of it? It is an elephant. Yes. और फिर स्नेक का वो लोग वर्शिप कर रहे. ऐसे कई लोगों कई चीजों का कर रहे. Along with that, they are worshipping even human beings. है ना. साईं बाबा was who? एक हमारे जैसा एक इंसान था वो. तो लोग उसको भी बिलीव कर रहे हैं ना. So polytheism is not only believe in idols or other creatures, but also along with God, if you believe in human beings also, it is called polytheism. Okay, so now where did polytheism start with? अभी polytheism start कैसे हुआ? तो अगर हम देखेंगे, अगर हम हिस्ट्री देखेंगे कि कब से वो पॉलिथिज्म स्टार्ट हुआ, तो आदम अलैहिस्सलाम, who was Adam अलैहिस्सलाम? First prophet. Yeah, the first prophet है ना. First prophet and first human being. Yes, correct. Okay, तो आदम अलैहिस्सलाम के बाद से ये बिलीफ स्टार्ट होने लगा. ओके
तो हेलो, कैन यू ऑल हियर मी? Yes. ओके, तो ये जो है क्या पॉलिथिज्म जो है आदम अलैहिस्सलाम के बाद स्लोली स्लोली लोग क्या होने लगे, अपने रास्ते से भटकने लगे, है ना? और कौन भटकाने लगा लोगों को? शैतान, है ना? teacher. Yes, Iblis. very good. Yes, Iblis. So Shaitan started what? Shaitan started putting in the minds of people कि तुम लोग ये खुदा को देख भी नहीं सकते तो तुम लोग खुदा को ही क्यों मान रहे हो? ओके, तो तुम लोग खुदा के साथ साथ किसी और को मानने लगो, यानी कि सेंट्स, यू नो सेंट्स। सेंट्स मतलब जो जैसे प्रीस्ट रहते, मौलाना रहते, पंडित रहते, उनको हम बोलेंगे सेंट, है ना? तो सेंट वर्शिप वो लोग ने स्टार्ट किए। ओके, एंड देन ऐसे करते करते कभी कभी वो लोग फरिश्तों में भी यकीन रखने मतलब यकीन नहीं, बट दे स्टार्टेड वर्शिपिंग देम। ओके, एंड ऐसे करते करते पॉलिथिज्म स्लोली स्लोली स्टार्ट होने लगा। ओके, एंड देन व्हाट हैपेंड? प्रॉफिट्स कितने आए? टोटल प्रॉफिट्स कितने आए? Anyone? 1,24,000. Yes, Allah sent so many prophets. So prophets को क्यों भेजा अल्लाह ने? इंसानों को सही रास्ता दिखाने के लिए, है ना? तो जैसे जैसे लोग ये चीज में जाने लगे, जैसे पॉलिथिज्म के अंदर, मतलब एक से ज्यादा खुदा को मानने लगे, तो अल्लाह ताला ने टाइम टू टाइम प्रॉफिट्स भेजे। ओके, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज दिस बिलीफ कॉल्ड? इस्लाम में हम लोग इसको क्या बोलते हैं जब एक से ज्यादा खुदा में यकीन रखते हैं? उसको Unseen means unseen. No. एक से ज्यादा खुदा में बिलीफ रखने को क्या बोलते हैं? I showed it to you on the screen, but I didn't talk about it. फर्स्ट स्लाइड जो मैंने दिखाई उसी में मैं बताई थी। Polytheism. Yeah, polytheism. What do you call it in Arabic? Polytheism. Shirk. Shirk. Very good. Who's the one who gave the answer? Who said this? Hayat. Okay, very good. Okay, तो एक से ज्यादा खुदा में बिलीव करने को हम लोग क्या बोलते हैं? शिर्क। ओके, शिर्क, और इन इंग्लिश वी कॉल इट पॉलिथिज्म। ओके, अब पॉलिथिज्म, एक से ज्यादा खुदा में यकीन रखना सही है क्या? है सही? नहीं। What is wrong in it? Or what can happen if you believe in more than one God? एक खुदा बोलेगा कि बैठो तो दूसरा खुदा बोलेगा खड़े रहो, तो दोनों मतलब प्रॉब्लम हो जाएगा। तो क्या होएगा फिर? कंफ्यूजन, है ना? बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होने लगेगा। तो ओके, सो विल सी व्हाट हैपेंस व्हेन ऐसा शिर्क करने से एक इंसान के जिंदगी में उसका इफेक्ट क्या होगा? ओके, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट? इम्पैक्ट मीन्स उसका असर क्या होगा एक से ज्यादा खुदा में यकीन रखने। तो सबसे पहले लाइफ विल बी फुल ऑफ सुपरस्टिशंस। तुम लोगों को मालूम है सुपरस्टिशन मतलब क्या? वर्ड सुने हैं? सुपरस्टिशन, अंधविश्वास सुने वर्ड? पानी पिला रखा था। हाँ, ओके, लोग बोलते हैं ना कि कटिंग नेल्स एंड हेयर ऑन सैटरडे, अगर जो सुपरस्टिशन में यकीन रखते ना, यानी एक से ज्यादा खुदा में यकीन रखेंगे तो डेफिनेटली उनको उनके अंदर सुपरस्टिशंस आने लगेंगे। जैसे कि अगर सैटरडेज को अगर नाखून या बाल काटे तो उससे बैड लक आएगा। ओके, फिर वो लोग क्या सोचते कि अगर काली बिल्ली तुम्हारे सामने आई तो क्या होगा? तुम्हारा दिन एकदम बेकार जाएगा। ओके, फिर शाम में अगर घर में झाड़ू मारेंगे तो लक्ष्मी घर में से चली जाएगी। ओके, फिर द बुलशिट, ओके, काउ डंग इज देयर, नो? काउ डंग अगर तुम लोग घर में रखेंगे तो उससे गुड लक आएगा गुड लक आएगा? नहीं। हाँ, क्या आएगा फिर?
गंदी बास आएगी, है ना? ओके, देन दे से एडिंग 1 रुपी टू अ गिफ्ट. ओके, अगर हम लोग किसी को गिफ्ट देते तो उसके साथ साथ 101 रुपया देंगे, है ना? 1 रुपया या 51 रुपीज. ओके, तो वो 1 रुपया से क्या होगा, बहुत सारा अच्छा लक आएगा. ओके, ये सोचते हैं. फिर पीपल विथ फ्लैट फीट. ओके, किसी किसी के पाँव जो है ना नीचे से एकदम पाँव के नीचे एकदम फ्लैट रहते, तो पीपल बिलीव दैट दोज हु हैव फ्लैट फीट उनका लक बैड, बहुत बुरा लक होता है उनका. ओके, दे हैव बैड लक. ओके, देन काजल लगाने से किसी की नजर नहीं लगती, है ना? बुरी नजर से बचते हम लोग. तो ये सारे सुपरस्टिशियस बिलीव्स है. ओके, डू यू थिंक एनी ऑफ इट इज ट्रू? No. नो. ओके, these are all superstition. सुपरस्टिशन मतलब उसमें कुछ भी लॉजिक नहीं है, कुछ भी कोई भी हंसेगा अगर तुम ऐसे बोलेंगे तो, है ना? लेकिन जो लोग एक से ज्यादा खुदा में यकीन रखते हैं उनकी सोच ऐसे बन जाती. ओके, दे डू अ लॉट ऑफ सेकेंड चीज जो होती है पॉलीथिज्म में बिलीव करने से, वो ये है कि बहुत सारे रिचुअल्स उनको करने पड़ते हैं. ओके, आई शेयर माय स्क्रीन नाउ, आई शो यू some rituals what they do. Okay, rituals मतलब रिचुअल्स, हाँ, रिवाज. वेरी गुड. ओके, कुछ कुछ रिवाज करते कि अगर हम लोग कोयले पे खाली पांव हम लोग चलेंगे तो भगवान हमारे गुनाह माफ करेगा, या हम लोग भगवान से जाके मिलेंगे, भगवान को बहुत सारा हम लोग फ्रूट और नारियल और ये वो खाने को देंगे तो भगवान हमसे खुश होगा और हमको बहुत सारा पैसा देगा. या अगर कोई लड़की है जिसको कुछ भी डिफेक्ट है तो अगर उसकी कुत्ते से शादी करेंगे तो उसको उसकी शादी किसी अच्छे घर में हो जाएगी. एंड लॉट ऑफ थिंग्स लाइक दिस. ओके, लॉट ऑफ रिचुअल्स दे डू. ओके, यू मस्ट हैव हर्ड अभी रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले द हिंदूज ऑल्सो सेलिब्रेटेड नो, वो झाड़ के आसपास जाके वो लोग धागा बांधते, है ना? फिर सांप का मूर्ति घर में लाके उसको दूध पिलाते हैं, एंड ऑल दोस थिंग्स. सो दीज आर रिचुअल्स. ओके, सो लॉट ऑफ रिचुअल्स में लोग फिर गिर जाते हैं ऐसा एक से ज्यादा खुदा में यकीन रखने से. और फिर नेक्स्ट इम्पैक्ट क्या होता है? नाउ 2 impacts we saw. What was the first impact? Life becomes full of superstitions. मतलब इतने सारे अंधे विश्वास करने लगते हैं कि उसमें कुछ लॉजिक ही नहीं रहता, कुछ चीज ही नहीं रहती उसमें. ओके, सेकेंड इज एंडलेस साइकिल ऑफ रिचुअल्स. बहुत सारे रिचुअल्स करने पड़ते. और फिर थर्ड इम्पैक्ट ये होता कि एक से ज्यादा खुदा में यकीन रखते, ये भी भगवान के पास जाते, उसके पास भी, उसके पास भी, उसके पास भी, लेकिन उनका काम ही नहीं होता. फिर उन लोग किसके पास जाते? ऑरेंज कपड़े पहन के बैठते. वो कौन रहते? लंबी दाढ़ी, लंबी मूछे, सेंट रहते, सेंट या बाबाज, है ना? बाबाज ऑरेंज कपड़े, आधे मुद्दे कपड़े पहन के लोग बैठे रहते हैं ना. तो ये बाबा लोग, हाँ करेक्ट, साधु या बाबा, वो लोग क्या करते हैं? लोगों को बुलाते हैं, हाँ बेटा आ जाओ, तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, और उनसे बहुत सारा पैसा लेते हैं, है ना? और बाद में हाँ करेक्ट, उनका हाथ देखते हैं, हाँ उनका हाथ देखेंगे और बोलेंगे तुम ऐसा करेंगे तो तुम्हारे को बैड लक आएगा, या ऐसा करेंगे तो तुमको गुड लक आएगा. और क्या करते फिर? फायदा किसका होता? उनके पास जाने वालों का या वो बाबा लोगों का? बाबा लोगों का, है ना? तो ऐसे कितने सारे बाबा लोग हैं जिनको इवन दे आर इवन अरेस्टेड नाउ. ओके, सो ऐसा करके वो लोग, हाँ, एनीवन सेइंग समथिंग? ओके, तो ऐसा करके फिर क्या होता है? बहुत सारे सुपरस्टिशंस, और फिर इंसान की जिंदगी कैसी रहेगी? एक इंसान की जिंदगी इधर भी भागता, उधर भी भागता, इसके पास उसके पास, उसके पास, है ना? सो मेनी गॉड्स ही इज गोइंग टू एंड नॉट अचीविंग एनीथिंग, है ना? और लास्ट में क्या होता है फिर? उसको इज जस्ट लाइफ उसकी एकदम कंफ्यूज्ड हो जाती, पूरा लाइफ में कुछ वजूद ही नहीं रहता है उसका, है ना? वैसे हो जाता है. ओके, तो ऐसा करने से अल्लाह ताला फिर क्या करेगा? अल्लाह ताला इज सेइंग, if anyone does like this, believes in anyone else besides Allah, then what will Allah do? Okay, what will Allah do is
Can somebody read this ayat for me? If you can see my screen, one of you. Yes. Yeah, can Yes, anyone yes, read? Yeah. Read. Yes, read. قال الله إني منزلها عليكم فما يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا عذبه أحد من العالمين. If you after that disbelieves, then I will punish him with a torment such as I have not Inflicted on anyone alamin. among the alamin. Okay, तो अल्लाह ताला क्या फरमाता है, ये चैप्टर नंबर 5 और आयत 115 में अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर आप लोग खुदा में यकीन नहीं रखते, डिसबिलीव करते, तो अल्लाह ताला ऐसा अजाब देगा जैसा अल्लाह ताला ने किसी को दिया ही नहीं. ओके, तो ये अल्लाह ताला बता रहा है कुरान में कि इफ यू डिसबिलीव देन देयर इज नोबडी हु कैन सेव यू फ्रॉम Allah's punishment. Okay, और अल्लाह ताला और एक आयत में बता रहा है कि अल्लाह does not forgive that a partner is associated to him, although he forgives other sins for whoever he wills. He who associates anyone with Allah in divinity has forged a mighty lie and committed an awesome sin. ओके, ये एक आयत है चैप्टर नंबर 4 की. तो इसमें अल्लाह ताला बता रहा है कि अल्लाह ताला कोई भी गुनाह माफ करेगा. अगर तुम झूठ बोलेंगे, चोरी करेंगे, चुगली करेंगे, कुछ भी, और अल्लाह से मतलब अल्लाह से तौबा करेंगे तो अल्लाह ताला तुम्हें माफ करेगा. लेकिन अगर तुम अल्लाह के साथ किसी और को शरीक करेंगे, मतलब शिर्क करेंगे, इफ यू एसोसिएट एनीवन विद अल्लाह, okay, you cannot associate anyone with Allah. Okay, can anyone tell me which surah says or talks about Allah एक है, अल्लाह का और कोई नहीं है? कौन सा सूरा है वो? इखलास. वेरी गुड. हाँ, तो अल्लाह के साथ अगर किसी को भी कोई इंसान एसोसिएट कर रहा है इन एनी फॉर्म, अगर कोई बोल रहा है कि अल्लाह पैदा हुआ या अल्लाह का कोई और है, अल्लाह का कोई और पार्टनर है, ऐसा भी अगर यकीन रखते तो इट इज अ सिन. ओके, इट इज एन ऑसम सिन, मतलब बहुत बहुत बड़ा गुनाह है. और अल्लाह ताला कोई भी गुनाह माफ करेगा सिवाय शिर्क के. तो शिर्क एक ऐसी चीज है जो अल्लाह ताला कभी भी माफ नहीं करेगा. ओके, हैव यू अंडरस्टूड सो मच? यस. Yes. ओके, एनी क्वेश्चन सो फार? अभी तक जो भी हम लोग ने पॉलिटिज्म के बारे में पढ़े, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस है तो आप लोग पूछ सकते हैं, या कोई बात समझ में नहीं आई आप लोगों को? So everything was clear about today's class? Yes? Yes. Okay. Yes. Yes, teacher, yes. Yes, yes. Okay. Very good. I Okay. understood. ओके, तो ये था आज के क्लास के बारे में अबाउट पॉलिटिज्म. ओके, सो व्हाट डिड वी डू लास्ट क्लास? अथीज्म. अथीज्म इज डिसबिलीफ इन गॉड. पॉलिटिज्म इज बिलीव इन मेनी गॉड्स. तो क्या ये दोनों चीजें सही है? नहीं. हाँ, कौन सी चीज सही है? वन मोर कंसेप्ट वी हैड लर्न स्टार्टिंग विथ एम. बिलीव इन, वेरी गुड, बिलीफ इन वन गॉड विच इज मोनोथिज्म, है ना? तो हमेशा एक और एक ही खुदा पे Yes, यकीन yes, रखना yes. है. वेरी गुड. Yes, yes. यस. ओके, सो दैट इज व्हाट मोनोथिज्म इज. बिलीफ इन वन गॉड, बिलीफ इन अल्लाह. ओके, व्हाट इज द कलमा वी रीड?
ला इलाहा इल्ला मोहम्मद रसूलुल्लाह। वेरी गुड, है ना। ला तो इलाहा इसमें इल्लल्लाह। हम लोग क्या बोलते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई और नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, है ना। सो आ कलिमा इज वेरी स्ट्रेट एंड वेरी क्लियर कि हम लोग सिर्फ एक ही खुदा में यकीन रखते हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, नोबडी एल्स, है ना। ओके, तो दिस इज अबाउट the whole chapter of monotheism and polytheism, okay, and atheism also we learned. All right, ठीक है। तो आज की क्लास ओके, तो अभी ये बुक रिव्यू है, a student from Vasco, right? Hashir Hussain, are you there? Yes. Okay. Hashir, can we start with your book review? Teacher, I don't have book. Only Okay, so study. you did not prepare for the class? No, I have prepared. Okay. तो आपने पॉइंट बनाए होंगे शायद। हाशिर, हैव यू नोटेड द पॉइंट्स? ऐसा आपने कुछ बनाया है? Yes, yes. Yes. Teacher, I have one point. खिजर, हेलो God. खिजर, आप अगर आपका कुछ सवाल है अभी जो सिस्टर अमरीन ने क्लास ली उससे रिलेटेड? Sir, I can't listen to anybody. Hashir, can you hear? Yeah, wait, Hashir, can you hear? Can't listen properly. We can hear you. You can start with your topic. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشैतान الرजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा आज का टॉपिक है नबूवत। नबूवत मानी पैगंबर की हकीकत, पैगंबर की पहचान, पैगंबर की इताअत। अल्लाह ताला ने इंसान को इतनी सख्त इम्तिहान में नहीं डाला है कि वो खुद अपनी कोशिश से इल्म हासिल कर ले, बल्कि इसने बाज यानी पैगंबर को वही के जरिए से ये इल्म अता किया और इनको हुक्म दिया कि वो दूसरे बंदों तक इनको पहुंचा। हम उम्मत मुस्लिमा की जिम्मेदारी है कि वो Sir, we cannot hear. ये मालूम होता है कि ये शायर है, क्योंकि दूसरे लोग ख्वाह कितनी ही कोशिश कर लें, ख्वाह कितनी कोशिश कर लें, ऐसी शायरी नहीं कह सकते। पैगंबर की इताअत, जब ये मालूम हो जाए कि फलां शख्स खुदा का सच्चा पैगंबर है तो उसकी बात मानना, उसकी इताअत करना, उसके तरीके की पैरवी करना जरूरी है। पैगंबर पर ईमान लाने की जरूरत, जब तुम्हें मालूम होगा कि इस्लाम सच्चा और सीधा रास्ता है, वही है, तो खुदा की तरफ से खुदा का पैगंबर बताओ, तो ये बात तुम खुद समझ सकते हो कि पैगंबर पर ईमान लाना, उसकी इताअत करना, उसकी पैरवी करना तमाम इंसानों के लिए जरूरी है। सबसे बड़ी बात यह है कि पैगंबर पर खुदा की तारीफ से खुदा की तरफ से भेजा हुआ है होता है और खुदा का ये हुक्म है कि इस पर ईमान लाओ और इसकी इताअत करो। अब जो कि पैगंबर पर ईमान नहीं लाता वो खुदा के खिलाफ बगावत करता है तो अल्लाह ताला उन्हें सख्त सजा देता है।
पैगंबर की मुख्तसर तारीख। अल्लाह ताला ने सबसे पहले पैगंबर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ही को पैदा किया और उनको हुक्म दिया कि वो अपनी औलाद को इस्लाम की तालीम दें, यानी इनको ये बताएं कि तुम्हारा और तमाम दुनिया का खुदा एक है, इसकी इसकी तुम इबादत करो और इसके आगे सर झुकाओ, इससे मदद मांगो, इसकी अर्जी के मुताबिक दुनिया में नेकी और इंसाफ की जिंदगी बसर करो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में जो उनकी बात माना वो अच्छा था और सीधा रास्ते पर चलता रहा, मगर जो लोग बुरे थे उन्होंने उसे छोड़ दिया। इनके बाद और कई नबी आए और अल्लाह के दीन को फैलाया और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत। ये वक्त था जब तमाम दुनिया और तमाम इंसानी कौमों के लिए एक पैगंबर यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब की सरजमीन में पैदा किया गया। 40 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत हुआ और इनको इस्लाम की पूरी तालीम और मुकम्मल कानून देकर इस खिदमत पर मजबूर किया गया कि इसे सारी दुनिया में फैला दे। खत्म नबूवत। अब तुमको जानना चाहिए कि जमीन में इस्लाम का सच्चा और सीधा रास्ता मालूम करने का कोई जरिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और कुरान मजीद के सिवा नहीं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नूह इंसान के लिए खुदा के पैगंबर हैं। इन पर पैगंबरी का सिलसिला खत्म कर दिया गया। अब जो शख्स हक का तालिब हुआ और खुदा का मुस्लिम बंदा बनना चाहता था, तो इस पर लाजिम है कि आखिरी पैगंबर पर ईमान लाए। आखिर में कहूँगा कि एक पैगंबर के बाद दूसरे पैगंबर के आने की वजह, उसकी 3 वजह हैं। ये कि पहले पैगंबर की तालीम और हिदायत मिट गई हो या और उसे पेश करने की दोबारा जरूरत, या फिर पैगंबर की तालीम मुकम्मल ना हुई हो और उसमें तरमीम या इजाफे की जरूरत। तीसरा, या फिर पैगंबर की तालीम एक खास कौम तक महदूद हो और दूसरी कौमों या कौमों के लिए पैगंबर की जरूरत। ये 3 वजह अब नहीं है, क्योंकि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और हिदायत जिंदा है और वो पूरी तरह महफूज है, जिनसे हर वक्त ये मालूम किया जा सकता है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन क्या था। अब ये जिम्मेदारी हमारी है कि उम्मत मुस्लिमा की है कि सारा दीन दूसरी उम्मत मुस्लिमा तक पहुँचाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह हशीर हुसैन, बहुत अच्छे से आपने पेश किया। वॉइस में थोड़ी सी दिक्कत थी बट फिर भी समझ में आया टॉपिक। वेरी गुड। तो इसके साथ आज का हमारे यहाँ जीवीसी का जो सेशन है खत्म होता है। दुआ के साथ हम लोग इस आज की क्लास को बर्खास्त करेंगे। मेरे पास मौलाना है, मैं मौलाना से गुजारिश करता हूँ दुआ करें। दुआ Yes, Asif, you are telling true. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबन्नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह मौलाना। मतलब आई हैव एक्सप्लेन्ड इट टू यू, बट आप लोग और रिसर्च करो कि अगर एक इंसान खुदा में बिल्कुल नहीं मानता है या बहुत सारे खुदाओं में मानता है तो उसका असर इन सब का असर उसके जिंदगी पे क्या होगा। ओके, एक 1 पेज ऑल्सो इफ यू राइट और हाफ अ पेज इन पॉइंट फॉर्म ऑल्सो विल डू। नेक्स्ट टाइम हम लोग स्टार्टिंग में किसी को भी आई विल मेक समबडी रीड
at the beginning of the class in 2 minutes. Okay, तो एक पेज काफी रहेगा. Okay, that is the homework. रिपीट for कीजिए next होमवर्क अमरीन. Your homework for next week is you have to write about a page about the impact of atheism and polytheism on a person's life. अथीज्म और पॉलिथिज्म यानी खुदा में नहीं मानना और खुदा में मानने का असर एक इंसान के ऊपर क्या होता है, ये एक पेज पे आपको लिखना है. पॉइंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं आप, या जैसे आपको आसान होता है आप लोग वैसे लिखो. ये दोनों भी चीजें मैंने आप लोगों को बताई. इम्पैक्ट ऑफ अथीज्म भी बताया है और इम्पैक्ट ऑफ पॉलिथिज्म भी बताया. बट यू ऑल रिसर्च मोर अबाउट इट एंड यू ऑल कैन राइट एंड शेयर इट द नेक्स्ट वीक. ओके. Yes. समझ में नहीं आया सवाल. टीचर बोल रहा हूं मैं. हेलो, आपकी आवाज क्लियर नहीं है. सिस्टर अमरीन, डिड यू हियर? No, I couldn't hear properly. But I think it is Sana Bhabhi. Sana Bhabhi is trying to say कि अगर impact of belief in one God भी आप लोग लिख सकते हैं तो लिखो. Impact of monotheism भी लिखो. Okay? Yes. Yeah. Okay, ठीक है. इंशाल्लाह we log out from this session today. अस्सलाम